Okay, as I have said that once you move latitudinal wise or altitudinal wise, then what we find that I have mentioned here that generally mean temperature of air decreases about 10 degree Fahrenheit for every degree of latitude north of equator, and for every 300 feet of altitude, हर 300 फीट पर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एयर का डिक्रीज हो जाता है. हर 1 किलोमीटर पर मैंने बताया था 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस करता है. वी कॉल्ड इट लैप्स रेट. So basically, because the air temperature is decline, so when you move along the altitude, what you find that the temperature decreases and precipitation increases in the windward side. जिधर से विंड आ रही है, माउंटेन को टकरा रही है, तो उधर आप क्या देखेंगे कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और हाइट के साथ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो आप वेजिटेशन डिफरेंसेस तुम्हें दिखाई देंगे, और वो वेजिटेशन डिफरेंसेस कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में जाते हो तो आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन में जो मॉइस्ट एरिया है जहाँ हैवी प्रेसिपिटेशन होते हैं वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, उस रीजन में जहाँ लेस प्रेसिपिटेशन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना ग्रो करता है जिसमें स्कैटर ट्री होते हैं. उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन में उस एरिया में जहाँ की वाटर स्कार्सिटी है, जो कि लेस प्रेसिपिटेशन इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं. डेसिडुअस में भी जहाँ प्रेसिपिटेशन जो है 150 सेंटीमीटर के आसपास हो रहा है तो मॉइस्ट डेसिडुअस, और जहाँ 100 सेंटीमीटर और के पास हो रहा है वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, so 75 to 100 centimeter range in which you observe what the dry deciduous forest. So you find the teak, shal, mahua, peepal, palash, okay, the cashew, that is khair, okay, or tendu. These are the plants which is you often found in the deciduous region. Okay, now when you move across the temperate regions or in the higher latitude, you find the coniferous forest, which is also known as taiga, where you find the lightwood trees like the fir, spruce, pine. Okay, such kind of vegetation you observe. And along the polar regions, when you move towards the higher latitudes, then what you find? Tundra. So beyond the coniferous region, beyond the taiga, there is no existence of tree because of extremely low temperature. Only the lower vegetations you can observe, like in mosses, sedges, grasses, as I have said. And along the polar region there is a ice cap, as you know. So this is the latitudinal variation. We also observe the altitudinal variations because this is the height, and as I have said that often what you find that after every 300 feet 10 degree Fahrenheit temperature decline, or after 1 kilometer 6.5 degrees Celsius temperature decline. Okay, so what we observed that when you look at, interestingly, even even you compare the Himalayan region in India, so Himalaya having two zones, one the zone of the Jammu and Kashmir regions of Himalaya, another is the northeastern region of Himalaya. So we can say the Himalaya having two parts, western parts and eastern parts. When you compare the western region, the region of Jammu, Kashmir, Ladakh, okay, the region of Himachal Pradesh, Uttarakhand, that is the western sector of Himalaya. When you look at the eastern sector, the northeastern regions of Himalayas, okay, what you find that you find differences in the vegetation. Okay, differences in vegetation you can observe in the western region. When you look at in the foothills of the Himalayas, what you observe, you in the foothills of Himalayas you observe the thorny vegetation because precipitation is less. So what you find? The thorny vegetation, scrubby vegetations in the foothills. I have mentioned here that it is the northwestern part and it is the eastern part. So what you find that
the vegetation which found in the western sector of Himalayas, ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, एज आई हैव सेड वेस्टर्न हिमालय किसको कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड रीजन में, और ये ईस्टर्न सेक्टर है। तो यहाँ लिखा है सेमी डेजर्ट, means here you find the vegetation similar to the semi-desertic vegetation. Here you find the scrubby vegetation. यहाँ thorny and scrubby vegetation तुम्हें दिखाई देगा, thorny and scrubby vegetation, जैसा कि आपको दिखाई देता है सेमी डेजर्टिक एरिया में. Why? Because precipitation is less. Okay. But you won't found in the northeastern region. Here the precipitation is more. यहाँ लिखा है oak. Here what you observe, the oak tree, oak plant. Okay. Now when you move here, after certain altitude, what you find that when you look at here, I had mentioned the altitude. देखो यहाँ, ठीक है, it is in meter. 0, this is the base, 700 meter. So till the 700 meter or 800 meter, what you observe, the semi-desertic vegetations, semi-desertic conditions are there. Precipitation is less in the western sector of Himalaya, and that's why you find the thorny and scrubby vegetation. Now when you look at 2500 meter, now here what you observe, that oak tree, pine tree, Artemisia, this is present in this region. So here the oak and pine means light wood trees is present. यहाँ देखोगे, अब फिर थोड़ा सा हाइट के ऊपर जाइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर almost 3000 meter when you look at. Now the conifers, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कोनिफर्स नाउ स्टार्ट्स द फर, स्प्रूस, ओके, स्प्रूस, birch, okay, alpine vegetation. Alpine means of course the coniferous, taiga, okay. So this is the region still where you find the alpine vegetation, fir, spruce, pine, birch. These are the vegetations which you can observe, okay. And beyond this you cannot observe what, the vegetations. अब इसके ऊपर आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा, ग्रासलैंड्स मिलेंगे, और फिर उसके ऊपर स्नो कैप्स मिलेंगे, ठीक है ना, ग्लेशिएटेड रीजन्स मिलेंगे. सो हियर देयर इज ग्रासलैंड, ओके, जिसको मर्ग कहते हो, द गुलमर्ग, सोनमर्ग, दिस रीजन आर द ग्रासलैंड रीजन, ओके. So this is the, and this is the limit of cultivation. यहाँ तक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ स्टेयर्स फार्मिंग्स, ओके. यहाँ ये जो हाइट लिखा हुआ है, दिस इज द हाइट वेयर देयर इज अ लिमिट ऑफ कल्टीवेशन. यूजुअली इस हाइट पे भी बहुत रेयर होता है, प्लांटेशन क्रॉपिंग होते हैं, ठीक है ना. लोग एप्पल्स ऑर्चर्ड फार्मिंग करते हैं, कीनू की खेती करते हैं, इस तरह से. Now when you look at here, in the eastern part, what you observe that, फिर यहाँ पर मैंने कहा कि 700 मीटर की ऊंचाई पर आते हो तो ओक है. फिर अगर आप यहाँ देखते हैं तो ओक, बैम्बू, रोडोडेंड्रॉन, चेस्टनट, ऐसे पौधे हैं, ठीक है, हाइट पर. उससे ऊपर आते हो तो कोनिफर्स एंड द रोडोडेंड्रंस, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा ऊपर पर है कल्टीवेशन लिमिट, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, यानी कल्टीवेशन यहाँ तक लोग करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. वेयर और व्हाट आर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विच इज़ फेमस हियर, द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. झूमिंग करते हैं लोग, झूमिंग, और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. So basically shifting cultivations practiced. This is the primitive form of agriculture which is practiced by the people in the northeastern regions. Okay, they cut the dense forest, clear the forest,
and then they do the agricultural practice. Okay, now above this height there is a alpine vegetations. Okay, and above this alpine vegetation there is a what, there is no tree. Basically what we observe the snow cap or the ice cap. तो ये तो मैंने बताया। उसके अलावा यहाँ पर फाउनास दिए, क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक बेयर लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड्स लिखा हुआ है। स्नो लेपर्ड्स फाउंड फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट, दिस इज एल्टीट्यूडनल। ये जो कलर लिखा है ब्लैक जो दिख रहा है, ये बताता है कि इस एल्टीट्यूड पर इनका निश है, इनका हैबिटेट है, ठीक है। इनका फंक्शनल एरिया इतना हाइट के ऊपर है, यानी ये अगर 1000 मीटर से स्टार्ट होते हैं तो ये 5000 मीटर तक सरवाइव कर सकते हैं। मीन्स दे कैन टॉलरेट द लो टेम्परेचर, द स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये बात लिखी गई है। वुल्फ मिलते हैं इन द वेस्टर्न हिमालयन सेक्टर, वुल्फ मिलते हैं लोअर लैटिट्यूड पर भी और हायर लैटिट्यूड पर भी। So what are the fauna which you observe in the western section? Okay, the faunas like the black bear, the musk deer, okay, the brown bear, the wolf, the snow leopards, you can observe in this region. What are the fauna you can observe? The rhino, Kaziranga National Park, Orang National Park, these are famous for the one-horned rhino. Okay. Now tiger you can observe in this belt, black bear you can observe in this belt. Okay, now you can observe the musk deer. Okay, now you can observe the leopards. Okay, the boreal leopards, the snow leopards in this region, boreal leopards it is known as, wolf, snow leopards. So all these variety. So rhino you cannot observe in the western section of Himalaya, it can restricted in the eastern section. And in the Sikkim region you can also observe panda. Okay, panda in the Sikkim region, in the certain patches of Arunachal. Okay, so these are the differences of the flora and the fauna which varies along the height or altitude, you can say. Getting my point, yes or no? So you have to understand this variations in the species, and you should keep in mind some examples also. Actually the question is example based basically. Okay, so you should keep in mind the example. And how you can memorize this further when we learn the biosphere reserve, national park, so you can categorize it in which regions what kind of national park is present, which kind of vegetation. But why we are learning the ecological factor? Because that gives us idea at what temperature what kind of vegetations available, what kind. In the western Himalaya another unique species is present, yak, which is not present in the eastern Himalaya. Yak is present in the western Himalayan regions. So basically we find various the goat variety. Okay, pashmina is present in the western region of Himalayas, which is not present in the eastern part of Himalaya, the pashmina goat. So there are certain species. The saffron cultivation is taking place in the Himalayan belt, especially in the western region, not in the eastern region. केसर की खेती वहाँ होती है, ओपियम की खेती होती है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयास. So you have to understand the people of the western Himalaya, the people of Jammu Kashmir, Himachal, they also practice basmati rice cultivation. Okay, not in the eastern part. So what we observe that what kind of vegetational differences or floral differences in the western part, in the eastern part. और वही कंपैरिजन तुमसे फिर पेनिनसुलर रीजन से पूछेगा, अच्छा वेस्टर्न घाट्स में कैसे होते हैं, दैट इज अ माउंटेन ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स रीजन में क्या वेजिटेशन होता है. तो ग्रेजुअली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर लर्निंग, बिकॉज दिस फैक्टर्स आर लिमिटिंग फैक्टर. Any temperature, humidity, precipitation, light,
इनकी अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट करती है, तो उसके कारण वेजिटेशन और फाउना दोनों अफेक्ट होते हैं। एक खास तरह की स्पीसीज सरवाइव कर सकती है, ठीक है। तो कल मैंने आपको ये डिस्कस किया था टेम्परेचर्स का इम्पैक्ट्स आपके साथ, ठीक है, और मैंने बताया था कि इंजरीज कैसे होती है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रेसिपिटेशंस के ऊपर वर्क करेंगे। प्रेसिपिटेशंस डिस्कशन करूंगा मैं। प्रेसिपिटेशन having the different forms, okay, different form of precipitation. One form of precipitation is rainfall. And why the precipitation takes place? As you know, the precipitation takes place because of when the evaporation takes place and the water vapors moves or ascend upward. Then as it moves upward in the atmosphere, the air temperature is decreases, as you know, because through as the altitude increases, the temperature decreases, what I have shared. That is known as lapse rate. अभी lapse rate भी मैंने climatology में डिस्कस किया था। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ lapse rate। फिर बाद में मैंने द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी आई हैड डिस्कस। ओके, एडियाबेटिक lapse rate, ड्राई एडियाबेटिक, सेचुरेटेड एडियाबेटिक lapse rate, और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ELR, ठीक है ना। तो लैप्स रेट, अगर मैं इन जनरल नॉर्मल लैप्स रेट की बात करता हूँ तो पर किलोमीटर मैंने क्या बताया, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, डिक्रीज करता है। अब क्या है यहाँ पर कि तो एयर का टेम्परेचर जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, व्हेन यू सिट इन अ बलून एंड स्टार्टेड लॉफ्टिंग, जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे, उठोगे, सेंड करोगे, तो क्या देखोगे, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है। अब टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है तो ये जो वाटर वेपर है हैविंग द हीट, दिस वाटर वेपर कंडेंस्ड when reach at the certain height, and after condensation the cloud formation takes place. Further I will discuss the theory of cloud condensation, okay, how the cloud condensation takes place. There are various theories in climatology. It is mentioned how the cloud condensation takes place. So cloud condensation takes place once the air temperature is down and this warm water vapor, when reaches to the certain height or altitude, the cloud condensation takes place. Now when the moisture holding capacity of clouds, okay, is saturated, तो फिर क्या होगा कि now the precipitation begins. तो अब क्या होता है कि ऊपर जैसे ही ऊपर लो टेम्परेचर है तो क्या होगा कि वाटर वेपर जब कंडेंस्ड होते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं। दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। और जब हीट रिलीज करते हैं वो फिर ये पहले वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं, फिर एक्सेसिव लो टेम्परेचर ऊपर है एटमॉस्फेयर में तो उसके कारण वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्यू थियरिस्ट, द क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और वो फिर आइस क्रिस्टल की साइज इंक्रीज होने लगती है क्योंकि उसके कांटेक्ट में जब भी वाटर वेपर आएगा वो भी कंडेंस्ड होकर आइस क्रिस्टल बनाता चला जाएगा। तो बड़े साइज के आइस क्रिस्टल्स क्लाउड्स के अंदर होते हैं। क्लाउड कंडेंसेशंस होने के लिए ना कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, लाइक डस्ट पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल्स और पॉलन ग्रेन्स, सच काइंड ऑफ एरोसॉल्स और द particulate matter must required for the condensation, because ये water vapor उसी के along जाकर कूल होते हैं, क्योंकि वो particulate matter अपर एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर क्या, ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखेंगे तो ये कूल होता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये कूल सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर वेपर आया वो भी कंडेंस्ड हो गया और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, फर्दर वो आइस क्रिस्टल में, और उसके कांटेक्ट में जितने भी वाटर वेपर आते गए वो भी सॉलिडिफाई होकर आइस क्रिस्टल बनाते गए। अब ये जब क्लाउड हैवी हो जाएगा, इसमें इतने ज़्यादा हो जाएंगे आइस क्रिस्टल की वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ये बस्ट होगा। When it burst out, then we called it precipitation. Now precipitation is in different form.
अभी आइस क्रिस्टल जब नीचे की तरफ आने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर इज वार्मर देन द अपर एटमॉस्फेयर। हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो नीचे आओगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये मेल्ट हो जाते हैं एंड रीच ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स। ओके, वी कॉल्ड इट। अब क्या होता है कि द साइज ऑफ ड्रॉप्स इज डिफरेंट। व्हाट आई मेंशन, ड्रिजल, when we call drizzling, when there is a fine water droplets reach to the earth's surface. So what I have mentioned, that precipitation is in different form. When we call drizzle, when the minute drops floats in the air, कहते हैं ना फुहारा हो रहा है, तो ये जो फुहारा हो रहा है that is drizzling. There is a minute, okay, droplets are floating in the air, then we called it drizzle. और जब इसी drop of liquid water is larger in size, okay, heavier than drizzle, then we called it what? We called it rain. तब हम उसे rain कहते हैं. So here the size of the water droplets is different. Here there is a very minute droplets. Here what? There the size is sufficient. You can find out, and they are heavier than this drizzles. Then we call it rainfall. तब हम rainfall कहते हैं. तो जब आप precipitation word use करते हो, precipitation is a larger connotation and there are different form of precipitation. अब फिर आप जब जाओगे in the hilly area or mountainous region, or in the cool temperate region, or in polar region where the precipitation in the form of snow, वहाँ हम snowfall कहते हैं, because even the lower atmosphere, the temperature is very low, and when the higher temperature atmosphere means the in the upper troposphere as well as lower stratosphere, the temperature is low, but despite it, in the lower atmosphere means troposphere के निचले हिस्से में भी टेम्परेचर क्या है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर इज लो. तो प्रेसिपिटेशन जो ऊपर से आ रहे हैं ड्रॉपलेट, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए, वो स्नो के फॉर्म में नीचे आते हैं सरफेस के ऊपर. तो मॉइस्चर एज सॉलिड स्टेट इज स्नो. When the moisture is coming towards the surface in the solid form, what we called it, snow. तो उसे हम snow कहते हैं. So snow is also a form of moisture and precipitation. Snowfall is also required for the growth of vegetation in the winter season. उसकी भी जरूरत है वहां पर, क्योंकि कुछ वेजिटेशन जो है उससे मॉइस्चर लेते हैं वहां. ओके, नाउ ड्यू. Dew is another form of precipitation. For dew, what is required for the formation of dew, for this kind of precipitation, a surface is required, and the surface temperature must be reached to the dew point. When the surface temperature is less, जैसे लीफ है, dew कब देखते हो, ओश कब देखते हो? We are in the tropical region. अगर आप नदर्न बेल्ट में जाएंगे या प्लेटू रीजन में जाओगे इंडिया के पेनिनसुलर बेल्ट में, तो तुम्हें ड्यू कब दिखता है? इन द विंटर. ओके, सुबह सुबह देखोगे ग्रासेस के ऊपर ओश की बूंदें होती हैं. क्यों होती हैं? आपके वॉल के ऊपर, गेट के ऊपर सरफेस चाहिए. इसी सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही मॉइस्चर आता है, एयर में मॉइस्चर है, देयर इज अ कूल सरफेस, द सरफेस टेम्परेचर रीच टू द ड्यू पॉइंट. जैसे इसके कांटेक्ट में मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के आते हैं, वो सरफेस के कांटेक्ट में आते ही कंडेंस्ड होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उसे कहते हैं ड्यू. अभी अभी आप देख रहे हो, देयर इज अ T20 मैच बिटवीन द न्यूजीलैंड एंड इंडिया, और वहाँ देखते हो ना, बार बार कमेंटेटर कहता है देयर इज अ ड्यू फैक्टर, देयर इज अ ड्यू फैक्टर. So as you know, the surface temperature is decreases. जैसे ही surface temperature decreases होता है, तो क्या हम देखते हैं कि due to decrease in surface temperature, the moisture when come in contact with that surfaces, the moisture condensed and form the dew. तब उसे हम dew कहते हैं. तो dew is also a form.
So what I have mentioned here, the form due to condensation of the moisture directly on the surface, objects, plants, animal is known as dew. तो यही इसी के ऊपर कंडेंस्ड होता है. Then the frost. Frost is what? In the cold condition, dew is the frost. अभी यहाँ देखो frost कब कहते हैं, ठीक है. Frost में क्या होता है कि the water which is present, the water which is present within the vegetations, within the leaves, okay, or the stems, the water converted into the ice crystals, we called it frost. तब हम उसे frost कहते हैं. तो जो अवेलेबल मॉइस्चर है लिव के अंदर, ठीक है, वो कंडेंस्ड हो गया वहीं पर उसी के अंदर, देन वी कॉल्ड इट फ्रॉस्ट. ओके, सो फ्रॉस्ट एक्शन लेड टू द कोल्ड इंजरी. पीछे मैंने पढ़ाया था, फ्रॉस्ट एक्शन लेड टू द कोल्ड इंजरी, द फ्रॉस्ट एक्शन लेड टू द डेसिकेशन इफेक्ट. ओके, इट कॉजेज हार्म टू द वेजिटेशन. नाउ स्लिट इज व्हाट? When the moisture is converted into ice pellets, छोटे छोटे जैसे बुलेट्स बन जाएं आइस के, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? तब हम उन्हें यूज करते हैं वर्ड स्लिट. स्लिट्स आर हार्मफुल when the wind speed is high and when the slits are formed, the moisture is converted into the ice crystal, ice pellets. तो ये बुलेट की तरह लगते हैं, ये इंजरी कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, ठीक है. और that also create harm to the animals, the human beings, the vegetation, the plants. okay, उनको जैसे मैंने आपको बताया था one winds which is known as blizzards in Canada. It is a local winds which creates, and उस local wind में क्या होते हैं? snow pellets भी winds के साथ blow करते हैं. that is injurious, harmful. तो यहाँ पर स्लीट है, स्मॉल ग्रेन्स और पेलेट ऑफ आइस. नाउ हेल, आपने देखा होगा हेल, ओला गिरता है जो बचपन में खाया होगा ऐसे लेकर, ठीक है. ग्लोबुलर आइस क्रिस्टल, ग्लोबुलर आइस क्रिस्टल्स कम टू द अर्थ सरफेस, उसको हम ओला वृष्टि या हेल स्टॉर्म्स कहते हैं, ठीक है. बिकॉज द व्हेन द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, तो मैंने क्या कहा कि the balls or lumps of ice is known as hail. The ball or the lumps of ice is coming, the globular ice crystal is reaching to the surface, we called it hail. Hail also affect vegetation. Hail is harmful for the life of the human being, the life of the animal, as well as plants affected by the hail storms. So there are different forms of precipitation which affect the distribution, growth and development of animal and plant. They causes injuries. Sometimes they the killing of the human being, as well as the plants die due to the strike of the this sleet, or you can say due to less precipitation or rainfall. So this directly and indirectly, because these are the source of the moisture. If the source of moisture won't reach to the earth's surface, then the soil become dry and desertic and the plants started dying. But मैंने कहा कि the frost action also led to injury, that causes the cold injuries, harm to the plants. The sleet is harmful for the animals, human life, as well as plant life, as well as what I've said, the hail storms. ओलावृष्टि के कारण फसल दब जाते हैं, ठीक है ना. जब बहुत तेज होती है hail storms तो फसल बर्बाद हो जाते हैं, किसानों को लॉस होता है. we lost the vegetations. okay, so these are the different. Heavy snowfall also causes harm to the vegetations as well as animals. अब उसके अलावा लेकिन मैंने कहा the certain amount of moisture is required for the plants. so little snowfall is not harmful. snowfall होना जरूरी है in the hilly area or in the cool temperate region, because that is the source of moisture through which the moisture reach to the surface. फिर समर में मेल्टिंग होगी, रिचार्ज होगा. लेकिन अगर हैवी होगा तो that causes the harm. So this is the conditions. Now when you look at another factor apart from that, what are the another factor which is important after precipitation? This is again a abiotic factor, a non-living factor. That factor is known as humidity. What is humidity? Amount of water vapor present in the atmosphere or air is known as humidity.
अब ह्यूमिडिटी आर ऑफ वेरियस टाइप्स, एब्सोल्यूट यहाँ दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Okay, when you look at the weather forecast, so for the weather forecast basically we measure the relative humidity. हम relative humidity measure करते हैं. So how you can measure the humidity and how you can define, so and how this humidity affect the distribution of plant and animals, we have to understand, because we are learning humidity as a ecological factor. So this is one of the climatic factors, humidity, which affect the what? The life of the animals and plants, because plant and animals are interacting with the abiotic environment. Okay, and these are the factors. So one of the different form of water in the nature is humidity, the atmospheric moisture in the form of invisible moisture. And there are three kind of humidity: absolute, specific and relative. I had already discussed in climatology, but again for the revision purposes. ठीक है, मैंने इसको कर लिया था लेकिन फिर से एक बार करते हैं इसको. तो मैंने कहा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन what? 10 of relative humidity, which is in term of, what is in term of relative humidity by temperature, wind, altitude, exposure, cover and soil water. किसके द्वारा ह्यूमिडिटी अफेक्ट होता है? तो मैंने लिखा है यहाँ टेम्परेचर के द्वारा. इफ द टेम्परेचर इज लो in the winter, the amount of humidity means the amount of water vapor present in atmosphere is less. In the summer, when the temperature is high, the evaporation is high. When the evaporation is high, the amount of water vapor in the atmosphere is high. Okay, so the temperature affect what? The amount of water vapor in the air, or the form of moisture we called humidity. Second, the wind. Okay, the wind also affects the humidity. Wind increases the rate of evaporation. What I have said, that when the wind started moving over the water surface, it increased the rate of evaporation. So wind also affect what? The amount of moisture. Altitude, the height. As you move, okay, from the sea level towards the altitude, towards the mountain, what you observe that that temperature started decreasing, the air temperature started decreasing. And when the air temperature started decreasing, the amount of the moisture which is present in that is comparatively less. Okay, so once you moves towards that, so why in Ladakh there is a cold desert? Okay, because of that. Now exposure to the sunlight, amount of light which is reaching to the earth's surface is if high, then the evaporation is more. If the exposure to the surface is less, to the lights, then there is a less evaporations. Once you look at, okay, cover and the soil water. Cover का मतलब cover of vegetation I am talking about, vegetation cover. Okay, vegetation cover, because as you know, when the vegetation is present in an area, the rate of transpiration is high. Okay, ड्राई डेजर्टिक एरिया है तो वहाँ वेजिटेशन कम है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम है, सॉइल के मॉइस्चर भी खत्म हो जाएंगे जल्दी ही. So if the vegetation cover is high, तो what you observe that the moisture availability is also high. So basically it also depend on the vegetation cover as well as the amount of water which is present in the pores of the soil. ठीक है, pore of soil के pore में ज़्यादा रहेंगे वाटर, तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा उस एटमॉस्फेयर में. तो ये हमने बताया आपको कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी. ठीक है, अब है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. हाउ यू कैन डिफाइन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बिकॉज डेफिनेशन में भी अ क्वेश्चन एज अ MCQ. Total weight of the moisture content per volume of air at a definite temperature is known as absolute. So ये है weight by volume. Weight किसका? Weight of moisture. Okay, per volume of, यहाँ लिखा है per volume of air at a
स्पेसिफिक टेम्परेचर, डिफाइंड टेम्परेचर, ठीक है। तो say for example if you have a when you are measuring the absolute humidity here at your room and you take the 1 liter capacity of glass, तो 1 लीटर ग्लास की कैपेसिटी है, यानी इसमें 1 लीटर गैस होगा। अगर आपके पास ये एम्प्टी ग्लास है यहाँ पर मेरे हाथ में, इसका मतलब है कि इस एम्प्टी ग्लास में एयर है, ठीक है। तो इस ग्लास की अगर कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसमें 1 लीटर गैस होगी, बिकॉज हियर देयर इज एटमॉस्फेयर। तो यहाँ इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, यू नो, मैंने वर्ड लिखा है वॉल्यूम। तो एटमॉस्फेयर में तुमने देखा कि 1 लीटर वॉल्यूम एयर है। अब इसमें कितना ग्राम मॉइस्चर अवेलेबल है उसको तुम देखोगे, वेट ऑफ मॉइस्चर। इसमें वाटर वेपर है, वाटर वेपर को लीटर में नहीं करना है, वाटर वेपर का वेट निकालना है ग्राम्स में, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि इसमें से 10 ग्राम्स वाटर वेपर है, तो 10 ग्राम्स अपॉन 1 लीटर, दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, total weight of moisture content per volume of air at a definite temperature। रूम टेम्परेचर आपको पता है, इस टेम्परेचर पर मेजर किया है मैंने। सो एट अ कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, वंस यू मेजर्स the weight of the moisture, weight I am talking about, the weight of moisture in a particular volume of air, then it is known as absolute humidity। Okay, so weight by volume, how you can remember it? W by V, weight by volume। Now when you look at a specific humidity, what is written here? It is defined as the mass of water vapor, again here the mass, that is the weight, mass of the water vapor in gram, okay, contained in the kilogram of air, kilogram, here the term volume is not written, kilogram of air, what does it means? It means W by W। आप अगर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अभी इसी सेम ग्लास में 1 लीटर एयर था, यहाँ पर 1 लीटर एयर का मास निकाल दो। अगर इस 1 लीटर एयर का मास क्या है, अगर 1 लीटर एयर का मास मान लो 20 ग्राम है और इसमें वाटर वेपर 10 ग्राम है, तो 10/20, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, इसलिए क्या बोला, इसको कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट बाय वेट, ये है वेट बाय वॉल्यूम। डिफरेंसेस समझना है आपको, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, फॉर्मूला पूछ लेगा या इक्वेशन पूछेगा, you must keep in mind। Then relative humidity, the amount of moisture in the percentage of the amount of which the air can hold at saturation at the existing temperature। अब देखो, say for example अभी ये टेम्परेचर है, say the temperature is 15 डिग्री सेल्सियस, okay, or temperature is 20 degree, whatever be the temperature is right now, which is at present, अभी जितना भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम मॉइस्चर कितना होल्ड कर सकता है। ये इस एयर की कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, ठीक है। मान लो कि जो मैक्सिमम है उसको मैं 100% कहता हूं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस एयर एट सर्टेन टेम्परेचर टू होल्ड द मॉइस्चर इज 100%। मान लो इसमें 10 ग्राम मॉइस्चर हो सकता है, 10 से जहां ज्यादा बढ़ा तो कंडेंसेशन, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा, ये सेचुरेट हो चुका रहेगा एयर। अब क्या है कि तुम्हें पता है कि अच्छा 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 ग्राम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, लेकिन अभी 10 ग्राम की जगह इस पे 5 ग्राम ही है मॉइस्चर, तो हम क्या कहेंगे
कि 50% ह्यूमिडिटी है। परसेंटेज में बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर एयर कैन होल्ड, ओके, एट सेचुरेशन। अभी देखो, तो मैंने क्या कहा, सेचुरेशन कंडीशन कब होता है इस एयर का, जब इस पे 10 ग्राम मॉइस्चर होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 5 ग्राम मॉइस्चर है, यानी अपनी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी से 5 ग्राम कम है, 50% लेस है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो तुम अगर अभी जाकर अपना वेदर फॉरकास्टिंग देखोगे तो वो बताएंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आज कितनी है। अब अगर समर में तुम देखोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है इसलिए पर्सपिरेशन होता है, तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है वो अपने सेचुरेशन के क्लोज होती है, क्योंकि लगातार इवेपोरेशन समर में होता रहता है। तो इसीलिए जब आपका पर्सपिरेशन होता है, पसीने निकलते हैं, तो वो सूखते नहीं है, आपका शरीर गीला हो जाता है जब आप बाहर निकलते हो, ठीक है, या एयर कंडीशन में नहीं रहते या कूलर के सामने नहीं रहते। तो क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं ड्राई होता, इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उसके क्लोज है, तो आपका मॉइस्चर कैसे लेगा वो। इसीलिए मैंने बताया कि जब हमें वेदर फॉरकास्ट के लिए बेसिक जो हमें चाहिए मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फिगर चाहिए, उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि आज प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, हम ये बता सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर अपने सेचुरेशन लिमिट के नज़दीक पहुंच गया तो प्रेसिपिटेशन होगा, फिर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी के ज़्यादा होगी तो फिर वो तो ड्रॉप गिरेगा, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड, द एब्सोल्यूट weight by volume, then specific weight by weight, and it is the percentage of the moisture present in the air when we compare with their saturation limit, okay. Then this is the relative humidity. So relative humidity, this humidity is very important abiotic factor because it limit the distribution of vegetation. Why in the desertic area the plants are xerophytes, or they have the unique adaptation, we called them the xerophytes. Why the leaf is converted into thorn, why the leaf are small, why the stem is thick, why there is a waxy covering, because the amount of moisture which is present in the desertic area is less. So there are mechanisms adopted by the plants to conserve the water. So amount of humidity regulate, amount of humidity affect what, the type of vegetation, their distribution, okay. तो ये important factor है humidity, क्योंकि what are the climatic factors which affect the growth of vegetation? The factor is temperature, the factor is humidity, the factor is the speed of wind, the factor is the soil. So this is one most important factor, because for the precipitations the humidity must be high, the relative humidity must be high in a region, okay. So humidity is again a very crucial and important factor which what affect. So here I have mentioned that relative humidity you can measure if you have idea of absolute humidity, okay, and humidity capacity. तो ये है एक फॉर्मूला। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर ऑब्जेक्टिव पेपर, हाउ यू कैन मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइक दैट। एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ लिखा है ना ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्स करने के लिए डिवाइस है साइक्रोमीटर और बाय पेपर स्ट्राइप हाइग्रोमीटर और थर्मो हाइग्रोग्राफ। जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैंने थर्मोमीटर बताया था, प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर है,
उसी तरह से ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर है या साइक्रोमीटर है या थर्मो हाइग्रोग्राफ है, इसके थ्रू आप मेजर्स करते हैं ह्यूमिडिटी को। तो ये मेजरिंग डिवाइसेस भी दिमाग में रखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। उसके बाद सेचुरेशन डेफिशिट एक वर्ड, तो terms is important for ecology as I have said always. Okay, so what is saturation deficit? लिखा है is a difference between the pressure of water vapor in atmosphere at a given time and the maximum vapor pressure it could contain at the same temperature, okay, expressed in mm of Hg। तो ये एयर है, if this is the air of the atmosphere, okay, so what is the maximum vapor pressure it could contain। अब ये एयर है, इस एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है। if there is a moisture in the air, that moisture, if this air is saturated by the moisture, it hold the maximum capacity of the moisture। this moisture create the what, the vapor pressure, ये it lead to the vapor pressure। क्या होगा, इतना दूर का मॉइस्चर का प्रेशर अगर यहाँ पर खड़े व्यक्ति के ऊपर देखेंगे, डेट इज द वेपर प्रेशर, द कॉलम ऑफ एयर, उसमें मॉइस्चर जो प्रेजेंट है उसके प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये तो मैक्सिमम है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड अ मैक्सिमम। मैक्सिमम वेपर प्रेशर आपको पता है कि अगर से मैंने कहा 100 mmHg, if it is 100 mmHg, okay, say, माइक ऑफ करो विवेक, ऑफ योर माइक। कहाँ घूम रहे हैं तुम? So vapor pressure 100 mm of Hg, as I have said, this is the maximum, but right now at say 20 degrees Celsius, right now, if the amount of moisture is not amount of moisture which is present is comparatively less, अभी वो अपने पूरे होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है उसके बराबर नहीं है, ठीक है। अभी इसमें मान लो कि मॉइस्चर 55 mmHg है, उसका प्रेशर जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर है उसका प्रेशर कितना है, 55 mmHg। मैंने क्या कहा, इस एयर का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है, मैंने कहा 100 mmHg हो सकता है, क्योंकि इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अगर हम निकालें उसका वेपर प्रेशर, तो ये हमने कहा कैलकुलेट किया 100 mmHg। लेकिन बोला कि अच्छा अभी वर्तमान समय में एट प्रेजेंट इसी टेम्परेचर पे कितना है मॉइस्चर, तो हमने देखा जो मॉइस्चर है और उसका वेपर प्रेशर निकाला तो वो 55 mmHg आया। तो बोला कि इसी डिफरेंसेस को 100 माइनस 55, दिस डिफरेंसेस क्रिएट व्हाट, सेचुरेशन डेफिसिट। इससे हमें पता लगता है कि वहां कितना सेचुरेशन डेफिसिट है। So to calculate the saturation deficit, you have to calculate the vapor pressure, the pressure created by the humidity or the amount of water vapor which is present in the air during that period of time at a constant temperature or at a given temperature. Given temperature word is more appropriate than the constant temperature, ठीक है। तो उस समय के टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम उसकी ह्यूमिडिटी कंटेंट कितनी है या वाटर वेपर कंटेंट, और उसके द्वारा पुट किया गया वेपर प्रेशर कितना है, और फिर हम ये देखेंगे कि एट प्रेजेंट उसमें कितना है और उस डिफरेंसेस को निकालेंगे, तो हम कहते हैं सेचुरेशन डेफिसिट। इस सेचुरेशन डेफिसिट से हमें ये पता लगता है कि वहाँ वेजिटेशंस के ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है कि नहीं है। सो दैट सेचुरेशन डेफिसिट ऑल्सो what play a significant role in the distribution of vegetation in a particular area, okay। So you have to keep in mind this definition।
So as I have said, the amount of humidity also affect the life of organism. If the amount of humidity and moisture is more, the precipitation is more, and as a result of which, if the environment is tropical humid regions, आप बोलते हो humid region, when the moisture is more in the atmosphere we called it humid region. If the moisture is less in the atmosphere we called it dry region. अगर ट्रॉपिकल ह्यूमिड बेल्ट में जाओगे तो डैट बेल्ट इज इंसेक्ट बॉर्न बेल्ट, वहाँ इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज होती है. डैट बेल्ट इज अ इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज बेल्ट. When you move to the Tarai region of Uttar Pradesh or Bihar, okay, what you find that, or in Delhi, when you look at in these regions, every year the people die due to dengue, malaria, chikungunya, filaria. There are lots of insect-borne diseases which occur in the tropical regions because of the humid conditions. There is a conducive atmosphere for the growth of the insects, which causes and harms the animal life, the human life. Okay, so how it affect, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? We are not learning here the climatology, we are learning here the climatic factor, how it affect the human life, how it affect the animal life, how it vegetation life, ये living के साथ कैसे interaction में रहते हैं. Because livings are there, we are living, and this is my surrounding, and atmosphere is also the part of my surroundings. How atmosphere, how humidity, okay, how the purity of air affects our life. We are learning such things in ecology. We are learning ecological factor, क्योंकि climatic dimension I had discussed. क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी का रोल, कि सेचुरेशन लिमिट पहुंच जाएगा, प्रेसिपिटेशन के लिए कैसे होगा, इनस्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ये सब मैं बता चुका हूँ, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, आपको ये भी नहीं जानना है. अभी आपको यहाँ क्लाइमेटिक wind is a climatic factor. I had already discussed कि how the winds forms, what kind of winds are present, planetary wind किसे कहते हैं. ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ प्लानिटरी सर्कुलेशन मॉडल्स को, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ. ठीक है, कि ट्राई सेलुलर मॉडल क्या है, पैलमेन मॉडल क्या है. ठीक है, अगर अर्थ नॉन रोटेटिंग होता तो क्या कंडीशन होता. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस. आई हैड डिस्कस कि व्हाट काइंड ऑफ लोकल विंड्स आर ब्लोन in a different region. I'm not talking about that. When you are learning climatology, you are learning a different dimensions and aspects. When you are learning ecology, you have to understand what are the role played by this factor. Okay, how it affect the life of vegetation, how it will affect the life of the animals, including the human being. तो बार बार आपको इसी dimensions में सोचना है, because you are learning a different subject. तो यहाँ मैंने विंड के बारे में लिखा है. विंड कैसे क्रिएट होते हैं? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, द वेरी वेरी कॉमन फैक्टर. देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ द जेनेसिस ऑफ द विंड्स. विंड के जेनेसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर है, मैंने आपको बताया था. ठीक है, कि विंड के लिए क्या क्या फैक्टर्स है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. द विंड इज ब्लोन due to creation of the pressure differences over the planet Earth. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं सरफेस के ऊपर, उसके कारण विंड जनरेट होते हैं. बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेसिस ऑफ विंड. अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वन टॉपिक इफ यू फिनिश एंड यू आर जंप ऑन द अनदर टॉपिक, यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट द बेसिक्स. यू कैन नॉट. And if you are forgetting, you have to revise it, because you never ever able to links the concepts. Okay, तो मैंने क्या कहा कि विंड के लिए फैक्टर क्या है. ठीक है, मैंने लिखा है कि वाटर विंड्स, विंड is the air in motion is known as wind. It's formed due to the temperature difference and which created the pressure gradient forces. तो मैंने कहा कि ये एरिया ए है, ये एरिया बी है. ठीक है, एरिया ए के ऊपर टेम्परेचर अलग है. ड्यू टू टेम्परेचर मैंने बताया था कि एयर एक्सपैंड करते हैं, एयर ऊपर असेंड करने लगते हैं, एक्सपैंड करने के बाद लाइटर हो जाते हैं. तो ये एयर पैकेट ऊपर उठा तो यहाँ लो प्रेशर हो गया. कंपैरेटिवली यहाँ जो लाइट रीच कर रही है, टेम्परेचर जो सरफेस का है वो लेस है, तो यहाँ एयर ज़्यादा वार्म नहीं हुआ, तो ये यहीं पर है सरफेस पर ही, तो इसे हाइप कहते हैं. और यहाँ ऊपर जाने से यहाँ एक
वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए एयर हॉरिजॉन्टल मूव करती है, देन दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। बिकॉज क्या हुआ यहाँ, हाई प्रेशर, प्रेशर को हम मिली बार में काउंट करते हैं। मान लो मैं इसी को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 1000 मिली बार प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर 900 मिली बार प्रेशर है। तो 1000 to 900 मिली बार यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये इसको कहते हैं आइसोबारिक लाइन, ये आइसोबारिक लाइन कहलाता है। सिमिलर प्रेशर यानी यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, किसी भी जगह पे जा रहे हो 1000 मिली बार है अगर प्रेशर, तो आइसोबारिक लाइन कहते हैं, ठीक है। तो विंड का मूवमेंट हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। तो आइसोबारिक लाइन ऐसे बना है, तो विंड्स ये 1000 मिली बार, ये 900 मिली बार, तो हाई टू लो ये आइसोबारिक लाइन के परपेंडिकुलर। लेकिन याद करोगे पीछे क्लाइमेट में मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऐसे विंड्स होते हैं जो ये जो देख रहे हो आइसोबारिक लाइन उसके पैरेलल चलते हैं, उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। जेट स्ट्रीम भी नियर जियोस्ट्रॉफिक विंड है, वो भी इस आइसोबारिक लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है, जेट स्ट्रीम का नाम सुना होगा। तो ये मैं क्लाइमेटिक डिमेंशन में नहीं जा रहा अभी, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब ये विंड ब्लो करेगा तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, कैसे लिविंग्स की लाइफ अफेक्ट होगी विंड्स के द्वारा। वी आर लर्निंग दिस एस्पेक्ट्स इन इकोलॉजी, ओके। So try to understand what I have mentioned, that the wind created the physical effect, physical effect यहाँ पर मैंने लिखा है, और physiological effect, both are different। physical effect are the mechanical effect, ठीक है ना, और physiological effect का मतलब है कि लाइफ जो है लिविंग्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है ना, बॉडी प्रोसेसेस को कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज फिजियोलॉजी, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं प्लांट्स में और एनिमल में, हम उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ अ लिविंग्स आर नोन एज व्हाट, द बॉडी प्रोसेसेस ऑफ लिविंग्स आर नोन एज द फिजियोलॉजी। सो यहाँ पर मैंने दो बताया, फिजिकल। अब क्या करते हैं, व्हेन द विंड स्पीड इज हाई, इट what it create, uprooting of plant, breakage of plant, plant टूट जाते हैं या plant उखड़ जाते हैं, that is a mechanical action of the wind, that is a physical action of the wind, wind affects the plants, okay, and vegetation, it uproot it, break it, okay, this is one factor. Deformation of the body or structure, it also deformed the body and structure of an organism including the plants, okay. What are another factor, lodging, it is the type of wind injury common in the grasses, grass झुक गए, lodging, एक दूसरे के ऊपर पड़ गए, the injury by the wind speed is known as lodging, okay. Now abrasion, particle of the soil or ice carried by the wind damage the plants and harmful for the animal, that action is abrasion। विंड ब्लो कर रहा है तो उसके साथ पार्टिकुलेट मैटर्स भी उड़ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स, सॉल्ट भी उड़ते हैं। इन कोस्टल एरिया सॉल्ट स्प्रे होता है, ओशनिक वाटर इज नाउ मूव टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया बिकॉज द विंड स्पीड इज हाई, तो सॉल्ट स्प्रे, ठीक है। देखोगे तुम क्या देखोगे, इन द डेजर्टिक एरिया सैंड स्टॉर्म्स, एंड व्हेन दैट wind laden by the sand when moves and strike to the wall of a mountain, or it strike to the animals, or it strike to the plants, it creates harms, that causes the abrasion effect over the rocks, abrasion effect over the vegetation, so that create harms, उसको harm पहुंचाते हैं। erosion or the deposition,
Wind is a agent of erosion. It removes the soil. Okay, what is the erosion? Erosion is the removal of the upper layer of the soil. So wind also removes the soil, and it carried the soil particle and deposited somewhere else. Okay, so erosion and deposition, and due to that, what happens sometimes, it led to desertification, extension of desert. Are you getting? नॉट ओनली द डेजर्टिफिकेशन, मैंने आपको पढ़ा है डेजर्टिफिकेशन मतलब केवल एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट नहीं होता ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सैंड एंड सिल्ट. डेजर्टिफिकेशन है कि वहाँ ड्राइनेस हो गया, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इज लेस, देन इट इज ऑल्सो नोन एज डेजर्टिफिकेशन. बट आपने क्या देखा कि डिपोजिशन भी होता है. लॉयस डिपॉजिटेड, लॉयस मीन्स फाइन डिपॉजिट ऑफ द सॉइल्स कैरिड बाय द विंड्स. ओके, so that also changed what the topography, the change, the fertility of the soil. And as the fertility, अगर सैंडी soil आकर कहीं से विंड के द्वारा डिपॉजिट हो जाए आपके फर्टाइल लैंड में, तो आपके soil की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, और soil की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन अफेक्ट होगा. ठीक है, इरोजन हो रहा है, soil का अपर लेयर रिमूव हो रहा है, that also affect the nutrient content, and when the nutrient content affected, the growth of vegetations also affected. And when the growth of vegetation affected, the organism, those who depend on that vegetations, the life of that organism, that animal also affected. So ecological factors are interlinked. तो यहाँ मैंने ये बताया, सॉल्ट स्प्रे भी बताया. सी कोस्ट एरिया में वाटर, जब वाटर क्या है, along with the wind speed, the salt spray takes place, due to which what we observe, उसके कारण हम ये देखते हैं कि कोस्टल एरिया में salinity बढ़ती है. That also create harms to the coastal ecology. So this is the physical impact. What is the physiological impact? Physiological क्या प्रोसेसेस है जो जिनको ये अफेक्ट करते हैं? लिखा है कॉम्प्रेशन वुड. कॉम्प्रेशन wood. What is compression wood? Due to deformation of xylem is red is called compression wood. Trees जब होते हैं ना, ट्री में रूट्स होते हैं और रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स में रूट्स हेयर्स होते हैं. इन रूट्स हेयर्स के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं द वाटर विच इज अवेलेबल इन द सॉइल पोर्स. और यहाँ प्लांट में एक वेशल्स होता है, दैट वेशल इज नोन एज जाइलम, एंड द जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग ट्यूब. इट इज अ वाटर कंडक्टिंग ट्यूब. ये टिश्यूज है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज. ठीक है, तो दिस वेशल्स कंडक्ट वाटर. अभी जब विंड स्पीड हाई होती है, ये कॉम्प्रेस हो जाता है, ये कॉम्प्रेस हो जाता है. ओके, एंड बिकम रेडिश. तो ब्लॉक हो गया ना, फिर आपका वेशल्स ही ब्लॉक हो गया प्लांट का, तो प्लांट क्या होने लगेगा? प्लांट गेट ड्राइड. अब वाटर जा ही नहीं रहे, फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड, एंड दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट. सो विंड स्पीड समटाइम्स लेड टू व्हाट? द कॉम्प्रेशन वुड. जाइलम के ऊपर इम्पैक्ट डालकर क्या किया उसने? ब्लॉक कर दिया, रेडिश हो जाते हैं. तो आप दिखाई देगा आपको. Desiccation effect. Increase in the speed of wind causes more transpiration, lead to the desiccation of plant. मैंने अभी बताया कि ये सरफेस है, और अगर विंड ब्लो कर रहा है तो यहाँ से बार बार ये रिमूव करेगा. क्या? जो वेपर निकल रहे हैं उसको रिमूव कर देगा, और वेपर निकलेगा, और रिमूव करेगा, और निकलेगा. तो विंड स्पीड जब हाई होती है तो लिफ्ट सरफेसेस अगर वार्म है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ा देती है. अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कंडक्ट कर रहा है ये टिश्यूज, अब यहाँ पर तो सॉइल में मॉइस्चर जो है उसकी अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर ये इवेपोरेशन रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? प्लांट को हार्म होगा. ठीक है ना, द प्लांट गेट ड्राइड. अगर आप समर सीजन में अच्छे से इरिगेट नहीं करते हो, पौधे क्यों मर जाते हैं? ठीक है, इसलिए क्योंकि जितना सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए उतना मिल नहीं होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई है.
Okay, getting my point? Yes or no? So that is another. Dwarfism, बौनापन कहते हैं, नाटापन. Dry wind influences the plant growth, causes dwarfism, stunted growth. ड्राई विंड चल रही है, मॉइस्चर लैडन विंड नहीं है, तो वेजिटेशंस के ग्रोथ को भी अफेक्ट करती हैं. कुछ पौधे जो है वो छोटे रह जाते हैं, वो प्रॉपर हाइट नहीं ले पाते, हम उससे कहते हैं ड्वार्फिज्म. ठीक है. सो व्हाट आई हैव सेड दैट दिस wind also affect what the life of plants, and of course on the plants certain animals are living, those who are herbivorous directly, and those who are carnivorous, those who are living on herbivorous, they are also dependent on the vegetation indirectly, you can say. So that also affect the life. अगर किसी एरिया में वेजिटेशन अफेक्ट हो रहा है तो एनिमल का लाइफ अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते. ऑब्वियसली इंटरलिंकेजेस है. ठीक है. तो मैंने यहाँ आपको विंड का एक्शन डिस्कस किया. ठीक है. When you look at the fire, another factor is the fire. Okay, and there are different kind of fires. I am talking about the natural fires which is occur in the forested area or grassland area due to the intense temperature or due to accidental action. I am not mentioning here the fire which causes due to the volcanic eruptions. I am not mentioning that. वुल्कानो में जब मैग्मा निकलते हैं उस समय भी आग लगती है, बिकॉज द हॉट मॉल्टेन मैग्मा इज इरप्टिंग आउट. ओके, एंड द बिग बोल्डर्स, okay, and the pyroclastic material is scattered all across, which also causes the fire. I'm not talking about that. I'm talking about the fires which creates in the grassland region, in the forested region, in the natural vegetation zones. So what you find that also affect the distribution of what the organisms. Now one type of fire is known as ground fire. अभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि you find that there is a organic matter which is on the soil accumulates richly as a heap. ठीक है. इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल के सरफेस के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड डिकम्पोज, मैंने कहा लीफ और एनिमल कैराकास और ये, और वो पड़े हुए हैं. ठीक है ना. और उसमें जब आग लगती है तो धीरे 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 वो फैलती है, वो एक साथ नहीं फैलती. उसे हम कहते हैं ग्राउंड फायर. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने लिखा है कि द ग्राउंड फायर डेवलप्ड वेयर ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स रिचली एज हीप. हीप मतलब क्या होता है? गट्ठर, ढेर, वहां पर है, उसमें लगे. दिस इज द फ्लेमलेस. ये फ्लेमलेस होता है. ऐसा नहीं कि इसमें फ्लेम लगेगा, लेकिन वो धुआं निकलती रहेगी, वो जलता रहेगा, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहेगा, एरिया को कवर करेगा. डैट इज नोन एज ग्राउंड फायर. अभी उसके बाद फिर लिखा है सरफेस फायर. सरफेस फायर कब होते हैं? जैसे आप जब वेजिटेशन की हार्वेस्टिंग होती है, काट लेते हो, तो पुआल छोड़ देते हो, पराली छोड़ देते हो. ठीक है ना. राइस हस्क रहता है, या फिर आपने अरहर निकाल दिया, उसकी डंठल रह गई. ठीक है ना. तो ऐसा आपने वेज छोड़ दिया. ठीक है. वेजिटेशंस है वहाँ के ऊपर, या लीटर फॉल है, पेड़ों की पत्तियाँ गिरी हुई हैं, या वेजिटेशंस तुमने लगाया था उसके लीफ फॉल हुए हैं, लीटर फॉल हुए हैं, वो जो पड़ा हुआ है, अगर उसमें आग लगती है तो वो सरफेस पर मूव करती है, उसमें फ्लेम्स भी होते हैं. तो मैंने क्या मेंशन किया है कि स्वीप ओवर द ग्राउंड, और ये तेजी से फैलते हैं. ठीक है. या ग्रासलैंड एरिया में चले जाओ, समर का सीजन है, ग्रास ड्राई है और आग लग गई. ठीक है ना. एक्सीडेंटली, नेचुरल वे में बहुत हीटिंग है और वहाँ पर आग पकड़ ली, तो वो बहुत तेज़ी से स्वीप ओवर करती है सरफेस के ऊपर, बहुत तेज़ी से बढ़ती है. इसीलिए कभी कभी समर सीजन में कभी खेतों में लग जाती है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से कवर करते हैं. दैट इज नोन एज what? That is known as the surface fire. So what I have mentioned here, that sweep over the ground surface rapidly, बहुत तेजी से बढ़ता है. ठीक है. Their flame consumes the liters. Liters means जो गिरते हैं, पत्तियां. ठीक है. Living herbaceous vegetation, shrubs, scorching tree bases.
तो ये क्या करते हैं, ग्रासेस, श्रब्स, इनको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। ये वेजिटेशन के लोअर पार्ट ट्रीज उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, एंड दे डैमेज. So this is very swiftly move over the surface. That's why it is known as surface fire. और फिर देखेंगे क्राउन फायर, इसको कैनोपी फायर भी कहते हैं. क्या होती है कि समर में विंड्स चल रही हैं, ट्रीज के ब्रांचेस काफ़ी गर्म हैं, वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, और कभी कभी इनके फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट क्रिएट होता है, फायर हो जाती है. तो क्या होता है, ट्री के कैनोपी में, ट्री है, ट्री का ये जो है ये है क्राउन, दिस इज क्राउन और कैनोपी. इनके आपस में दो ट्रीज का ये ब्रांचेस रगड़ खाया, उससे फायर लग गई, इसमें लग गई, क्राउन में, कैनोपी में लग गई. ये इट इज वेरी डेंजरस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ फायर. आप हर साल देखोगे इन द ट्रॉपिकल रीजन, एनीवेयर इन द टेम्परेट बेल्ट, ऑल्सो इन द समर, फॉरेस्ट फायर टेक्स प्लेस. फॉरेस्ट फायर में जनरली क्या होता है, कैनोपी और क्राउन फायर, दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव, कॉजेज हार्म टू द एनिमल्स लाइफ, and the thousands and millions of trees were affected. एनिमल भाग भी नहीं पाता जंगल से, कई लोग मर जाते हैं. अमेजोनियन फॉरेस्ट याद कीजिए, आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं, कई लोग मर गए, कई जानवर मर गए. रेस्क्यू कराना मुश्किल होता है, बचाना मुश्किल होता है. आपने देखा होगा प्लेन और हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर वाटर डाला जाता है या फायर रेपेलेंट डाले जाते हैं बुझाने के लिए. दैट इज most destructive. Okay, so the burning of the forest canopy as well as surface debris. समर में जो लीफ गिरा है उसमें भी आग लग गई है, लैडर लाइक सिचुएशन हो जाता है, नीचे भी आग, ऊपर भी आग, जाना भी मुश्किल अंदर फॉरेस्ट के अंदर, शेव करना मुश्किल हो जाता है एनिमल्स को. एंड दैट इज द वाइल्ड एनिमल, दोज हु आर लिविंग. ओके, सो दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव. इन दैट एरिया जहाँ की फायर बर्न एरिया जो होता है, वहाँ के सॉइल्स की जो न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज हो जाते हैं. आग लग गई, उसके बाद आग ठंडा हो गया, फिर जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता है. वहाँ जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, सम फंजाई मेनली एस्कोमाइसिटीज ग्रो इन द बर्न्ड एरियाज नोन एज साइक्रोफिलस ऑर्गेनिज्म. उसको हम साइक्रोफिलस कहते हैं. साइक्रोफिलस वर्ड आएगा तो कहाँ लगाओगे, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फायर बर्न एरिया में भी ग्रो करते हैं, उसे हम साइक्रोफिलस कहते हैं. तो ये याद रखना, साइक्रोफिलस टर्म्स किसके लिए आता है, द ऑर्गेनिजम्स विच में ग्रो इन द फायर बर्न एरियाज, ओके, आर नोन एज साइक्रोफिलस ऑर्गेनिज्म. द फंजाई आर एग्जाम्पल. फंजाई का एक ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज, इसके अंदर आने वाले कई फंगस हैं जो ग्रो करते हैं उस एरिया में भी जहाँ रिसेंटली आग लगी हो, फॉरेस्ट बर्न एरियाज में भी ये ग्रो करते हैं. तो साइक्रोफिलस ऑर्गेनिजम्स को माइंड में रखना आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे. आई हैड मेंशन इन माय नोट्स ऑल दिस थिंग्स, एंड टुमारो आई विल डिस्कस द अनदर फैक्टर, दैट इज द वाटर, which is probably the last abiotic factor, and then I will discuss the biotic factor. Okay, so take care, have a nice time.